Okay, assalamualaikum everyone. How are you guys doing? I'm just gonna share my screen फिर हम start करते हैं. Okay. Gonna be using somebody else's slides for today's lecture. Adversarial search we have to talk about now. So let's have a look. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. मैम आपने लास्ट क्लास रिकॉर्ड की थी? Yes, मैंने upload कर दी थी I think. अ, Yeah, I think it जीसीआर should पर? it should be on GCR. Yes. ओके। Mm-hmm. I'm recording this one also because obviously like कुछ लोग नहीं आ सकते किसी वजह से तो फिर they can view it later. Okay, so let's start with the lecture. Already like 5 minutes से ज़्यादा हो चुके हैं, so we shouldn't wait any longer. So right, so adversarial search discuss करनी है. If you remember when we were talking about types of agents, oh sorry, more like types of environments, उसके अंदर हमने कहा था कि सिंगल एजेंट भी हो सकता है, मल्टीपल एजेंट्स भी हो सकते हैं. एंड व्हेन वी सेड के मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं तो in that there were two types, right? One was कि वो cooperate करके कुछ कर रहे हैं या are they're playing against each other. तो जब हम adversarial search की बात करते हैं तो that is when you have two AI agents जो कि एक दूसरे के against play कर रहे होंगे. So if you have to implement an AI like that तो फिर उसके लिए we have different mechanisms or strategies जिसको यूज़ करके हम implement कर सकते हैं एक AI. So let's talk about कि किस type की games के लिए. अच्छा, so one more thing, yeah, actually, you use it usually for different types of games, right? So adversary, yeah, adversarial, it's like basically one opponent against another. So you have different types of games and उनको हम categorize कर सकते हैं 4 different चीज़ों के अंदर. One is ke whether the game is deterministic or not. So when I say deterministic, that means ke if you have like do you have a set of rules and do you have like every possible state जिसको आप list down कर सकते हो? Kind of yes. And like अगर हम chess की बात करते हैं तो it's deterministic. There's like no confusion कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा. No, there's no confusion against that. Rules are given. And when we talk about non-deterministic, though, then you have some randomness factor in it, right? So if you remember जब हम environment की बात कर रहे थे, तो we had this as well. कि non-deterministic we said whenever you have some randomness का factor. तो like for example हमने कहा था cards हम खेल रहे होते हैं तो that is random because like आप shuffle करके उनको सबको देते हो तो वो अब उसके अंदर randomness आ जाती है, right? And similarly अगर हम कोई भी dice game की बात करते हैं that is also random because वो dice के roll के ऊपर depend करता है. तो any games like that that would fall in the non-deterministic category. Then we have perfect या complete information या imperfect या incomplete information. So again, like if I'm looking at the board, क्या मुझे सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं? Is there something hidden from me or not? तो if मुझे पूरी board की state दिख रही है, तो that is perfect information. And if I cannot see it, then that is imperfect information. तो like cards की बात कर लेते हैं दोबारा से. So I cannot see my opponent's cards. So that is something that is imperfect. तो यहाँ तक कोई issues हो तो please पूछ लीजिएगा. Okay, thank you, Maz. I saw it just now, but thank you still. Okay. Any questions? I do have like a bunch of pictures and stuff, so we can discuss about adversarial search in a little bit.
But for now हम यहाँ से continue करते हैं. So nobody asked anything, but yeah, you can unmute and ask at any point. जब भी कोई confusion हो तो don't hesitate. All right. So adversarial search जब हम implement कर रहे होते हैं तो we try to implement in such a way कि there's two agents, right? So एक so हम basically क्या कर रहे हैं, we try to like assign some scores to states based on agent का decision. तो let's say अगर agent ने अच्छा move किया है तो you assign it a good score. Like लेकिन अब हर agent का score will be different. So like for example, agent A is playing against agent B, एंड जब आप एजेंट ए के लिए स्कोर दोगे हमेशा उसको आप प्लस में स्कोर दोगे, एंड जब एजेंट बी को आप स्कोर दोगे हमेशा उसे माइनस में स्कोर दोगे. तो व्हाट हैपेंस इज के एवरी वन विल बी ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर उनके नंबर की तरफ हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेगे ए की बात करते हैं तो इल ट्राई के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर आ रहा हो, एंड अगर मैं बी की बात करती हूँ तो इट विल ट्राई के कम से कम नंबर आ रहा हो. तो ज़ीरो सम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो दैट इज़ बेसिकली अगर दोनों ने इस तरह से बेस्ट मूव्स पिक किए कि यू एंड अप विद ज़ीरो, तो दैट वुड मीन के देयर इज़ अ ड्रॉ बिटवीन बोथ द एजेंट्स. तो भैया विल सी कि हम माइनस एंड प्लस स्कोर्स को किस तरह से देख रहे होंगे. जस्ट अ लिटिल बिट. ठीक है. So now this is a picture from the book and I do have it open. So मैं उसे खोल लेती हूँ. It's better in here. Alright, here we go. ठीक है. So now this is a game of tic tac toe, right? And इसको ज़रा मैं इसका screenshot लेती हूँ कि इसके ऊपर मुझे draw करना है. So just give me a sec. Here we go. मैम Yeah. पूछिए. हमेशा सिर्फ दो ही एजेंट्स होंगे. Okay, so जो हम अभी discuss करेंगे that is for two agents, but there can be multiple agents. हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक एजेंट और एक इंसान हो. Oh yeah, that is different. That is different. So we'll talk about कि किस तरह से हो रहा होगा. Let me see if I can. How do I clear this, guys? Do you have any idea? मैम एक इरेजर होती है वो सब मिटा दीजिए. मुझे Clear दिख हो नहीं जाता है रही. पूरा पेज. नई शीट खोलें. Like I must be blind because मुझे option नहीं दिख रहा. Okay, this is not the option. Can I refresh it? Will it be gone? I hope so. नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी open किया था. It won't be gone. Do I have to log in? Hang on, मैं log in कर लेती हूँ. मिस पेन्स में ऑप्शन है इरेजर का. Oh, is it? Okay, well, let me just refresh then. Yes. One sec, one sec. Oh, there we go. Thank you. It's not letting me erase it. I'm so confused. यार आपको साइन इन करना पड़ेगा. It's fine. Oh, wait. Because I never really had this problem before. I don't know why. Oh, मैंने पहले login किया हुआ था. Okay, got it. Makes sense. All right, so back to this. Right, मुझे picture paste करनी थी यहाँ पे. There we go. All right. Okay, so it can be multiple agents and it can also be like one human versus a computer. So दोनों के situation में kind of the algorithm will work in the same way. So let's talk about adversarial search in terms of tic-tac-toe. तो टिक टैक टो के लिए हमने कुछ चीज़ें तो वैसे पहले भी डिस्कस करी थी, बट या लेट्स टॉक अबाउट देम रियल क्विक राइट नाउ. सो जब हम स्टेट स्पेस बना रहे होते हैं फॉर टिक टैक टो, इनिशियल वन इज़ ऑलवेज एम्प्टी एंड देन सारी लाइक पोजीशंस के लिए एक एक स्टेट्स होती हैं, राइट. सो यहाँ पर देन विल टॉक अबाउट दिस लेटर, सो इग्नोर दैट फॉर नाउ. सो अब हर स्टेट के लिए देयर्स
Um, so for this one, there's 8 possibilities, right? And इसके लिए भी 8 होंगी, इसके लिए भी 8 होंगी, इसके लिए भी 8 होंगी, and so on until eventually you reach single states. तो ये हमारी leaves है. It might be कि सारी leaves same level पर ना हो. And why do I say that? I say that because let's say इस state को मैं थोड़ा सा expand करती हूँ. We have x here. Let's say उसने O यहाँ पर लगाया. Then let's say in another state उसने x यहाँ पर मार्क किया and हमने o यहाँ पर मार्क किया. And then again let's say उसने अगली स्टेट में 0 के नीचे 0 मार्क किया and आपने ये कर दिया. And then let's say final state में we have x and x. So like I'm writing very terribly, but yeah, so ये इतने से level में kind of game over हो गया, right? तो it might be कि ये वाली बहुत बुरी सी गेम है, but yeah, there's a possibility in the state space कि हमारे पास इस तरह की एक state exist कर रही होगी. So there's gonna be multiple states, final states जो कि different levels पर exist कर रही होंगी. तो we have to keep that in mind as well. ठीक है. सो अब लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा एल्गोरिदम या हमारी स्कोरिंग किस तरह से काम कर रही होती है. सो फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग हमने कहा कि लेट्स से ज़ीरो जो भी whoever is responsible for marking 0 उसको हम नेगेटिवली स्कोर कर रहे हैं, and whoever is responsible for marking x उसको हम पॉजिटिवली स्कोर कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर किसी भी स्टेट में 0 जीत रहा है वहाँ पर हम -1 असाइन कर रहे हैं स्कोर, एंड जहाँ पर भी x जीत रहा है वहाँ पर हम +1 असाइन कर रहे हैं स्कोर. एंड अगर x और 0 कोई भी नहीं जीत रहे तो हम 0 ड्रॉ के लिए 0 असाइन कर रहे हैं. सो नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पर ना थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग भी आ जाती है. जब हम एल्गोरिदम पर आएंगे तो विल टॉक अबाउट बैक ट्रैकिंग का क्या काम है यहाँ पर. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि लीफ नोड्स पर जो भी चीज़ें होंगी उनको सबसे पहले हम स्कोर असाइन कर रहे होंगे बेस्ड ऑन कि लाइक कौन सा एजेंट पॉजिटिव स्कोर की तरफ जाना चाह रहा है, कौन सा एजेंट नेगेटिव स्कोर की तरफ जाना चाह रहा है. तो that is how we're going to be generating the tree and marking the leaves nodes के who's winning, who's losing या draw है. ठीक है. So इस part के अंदर कोई मसला कि like हम किस तरह से mark कर रहे हैं अपनी leaf nodes को. मैम अगर किसी छोटे लेवल पे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे लेवल 4 पे दोनों जीत रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर एक लेवल 2 पे जीत गया तो अब तो वो वाला तो फिर एक्सपेंड नहीं होगा, वो वाली Yeah, state वो और further expand expand नहीं होंगी. Yes, बिल्कुल. लेकिन मतलब जो फॉर एग्जांपल x जीता है वो +1 हो चुका है, तो अब इस लेवल पे वो आके +2 होगा या फिर हर स्टेट के लिए No, दोबारा से it's gonna be +1 या -1 for each state. Like अगर 0 जीत रहा है तो -1, अगर x जीत रहा है तो +1. पर अगर किसी छोटी स्टेट पे x एक दफा जीत गया +1 और वो फोर्थ स्टेट पे भी दोबारा जीत रहा है, तब भी मतलब +1 ही होगा. Yeah. So हम different scores दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर specifically tic-tac-toe के अंदर the goal is just to win. So the goal isn't कि like minimum number of steps में let's say we have to win. तो अगर minimum number of steps है we had to win तो हम उसे कोई specific score दे सकते हैं. But over here it's not relevant. So we'll see another example जिसके अंदर score हम modify कर सकते हैं. But for now, tic-tac-toe में the goal is to win. So winning is +1 अगर x जीत रहा है and winning is -1 अगर 0 जीत रहा है. So that is the base thing for now. We'll see another example जिसमें हम different scores दे रहे होंगे. So any problems on this? Yes, we will mark +1 for all of the states where x wins. And yes, सिर्फ leaf nodes पर mark करेंगे. For now. सही है, बाद में हम देखेंगे कि क्या है, किसको पिक करना है, किसको नहीं पिक करना. So for now, this is what we have. कोई questions? Alright. So here I have taken this image of tic-tac-toe from Geeks for Geeks.
जिसके ऊपर उन्होंने मिन मैक्स लगाया हुआ था। तो लेट्स डू इट आवरसेल्व्स। उन्होंने +10 एंड -10 रखा हुआ है स्कोर, but what we talked about was +1 and -1, so both are the same things. So हम ज़रा बोर्ड को इधर करते हैं and there we go. इसको मैं बड़ा कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें देखना है कि min max algorithm कर क्या रहा होगा and min max algorithm होता क्या है. So let's first talk about के min max. I say min max, but it's actually called mini max. So mini max algorithm है क्या? So you assume कि आपका agent जो है it's playing against another smart entity. अब वो smart entity कोई बंदा हो सकता है या कोई और machine हो सकती है. तो I have to pick my moves. Yeah, when I say I mean the agent. Agent has to pick the moves depending on के जो उसके बाद जो भी agent move करेगा, तो if it's a smart agent, तो they will also be trying to win. So I have to make my decision based on के दूसरा बंदा क्या move करेगा. तो like for example when you play tic-tac-toe, आप क्या करते हो, आपको पता होता है कि ओके जो फर्स्ट जा रहा है वो यहाँ पर अगर लगाएगा तो मोस्ट लाइकली वो जीत जाएगा. तो व्हाट शुड योर मूव बी इफ़ यू वांट टू लेट्स से ड्रॉ द गेम. ठीक है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ द थ्योरी बिहाइंड दिस. एंड व्हाट यू डू, तो दो चीज़ें होंगी इसके अंदर, एक मैक्स होगा एक मेन होगा. तो वे अज्यूम करते हैं कि ना जो मैक्स वाला एजेंट है दैट गोज फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ द मेन वाला बेसिकली क्या कर रहा है कि ओके जो सेकंड बंदा मूव करने जा रहा है मेन उसको पोर्ट्रे कर रहा है बेसिकली. तो ऑन ईच लेवल ऑफ द ग्राफ हम अज्यूम करते हैं कि ऑल्टरनेटिवली एजेंट्स मूव्स प्ले कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि है क्या. अच्छा या वन मोर थिंग, DFS लग रहा होता है एंड बैक ट्रैकिंग यूटिलाइज हो रही होती है टू यूज़ द काउंट बेसिकली. तो नाउ लेट्स हैव अ लुक. एक्चुअली इसको छोड़ेंगे नहीं दिखाना है मुझे, इसी को देखते हैं. हियर वी गो. सो हमारे पास अगर हम लेवल्स यहाँ पर मेंशन कर दें तो वी हैव, आई वांट टू एक्सपैंड द साइज ऑफ इट अ लिटिल बिट. मुझे करने ही नहीं दे रहा. God damn it. Okay, it's fine. Let me just write. फिर हम इसका साइज पूरा कर लेंगे. There we go. Oh, that's not what I meant to do. Okay, so and then level 3. So level 1 पर we assume कि हम score को maximize करने की कोशिश कर रहे हैं. तो we're gonna assume कि max wala agent is the one who is trying to win. So X let's say is trying to win. Level 2 पर हम score minimize करने की कोशिश कर रहे हैं. Now जो minimize करने की मैं बात कर रही हूँ that is basically you saying कि ओके अगर दूसरा एजेंट स्मार्ट है तो वो कौन सा मूव पिक करेगा. दैट इज़ द क्वेश्चन बेसिकली. एंड यू आर ट्राइंग टू गेस योर रिजल्ट. वेल यू आर ट्राइंग टू क्या कहते हैं पिक द स्टेट बेस्ड ऑन जो भी आपको यहाँ से पता लग रहा होगा. तो लेट्स कंटिन्यू एंड विल सी क्या हो रहा है. एक्स ओके. सो व्हाट यू डू इज़ कि लाइक आपके पास एक गेम ट्री बना हुआ है बेस्ड ऑन वट एवर यू हैव. लाइक ओवर हेयर हमारे पास एक स्टेट है फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टेट्स. नाउ इसके अंदर लेट्स से एक्स हैज़ टू मेक अ मूव. तो एक्स के पास 3 पॉसिबल पोजिशंस हैं जो कि हमारे पास हैं. सो लाइक oh that's not what I meant to do. So x के पास 3 पॉसिबल पोजिशंस हैं. या तो हम यहाँ पर x डाल सकते हैं, या तो हम यहाँ पर x डाल सकते हैं, या तो हम यहाँ पर x डाल सकते हैं. So if you place x over there you win. If you place x over there you don't win and yet. And if you place x over there तो again you don't win yet. ठीक है. तो then बाकी स्टेट्स भी हम देख लेते हैं कि है क्या. बाकी स्टेट्स में भी क्या है. ओके अगर x यहाँ डाल दिया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं फॉर o
अगर यहाँ पर डाल दिया है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं फॉर एंड सो ऑन, राइट? तो पूरे का पूरा हमारा ट्री बन गया, ठीक है। सो व्हेन यू हैव द ट्री, तो अब हमें यहाँ पर देखना है, सो मैक्सिमाइज किस तरह से होगा। यू डोंट एक्चुअली स्टार्ट हियर, हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक तो डेप्थ फर्स्ट लग रही है, रिमेंबर। सो डेप्थ फर्स्ट मीन्स के ओके you're gonna go here, then you're gonna go to its child, ठीक है। सो इसके चाइल्ड का स्कोर क्या है? इज -10, ठीक है। सो we'll just remember कि इसका स्कोर -10 था, and then you'll backtrack and then you'll go over here and then you'll see कि इसके चाइल्ड का स्कोर क्या था। तो इसके चाइल्ड का स्कोर एक्चुअली नहीं है, सो यू कीप गोइंग डाउन, सो यू कीप गोइंग डाउन अंटिल ओवर हेयर। तो आपको यहाँ से स्कोर क्या मिला? 0, ठीक है। सो 0 मुझे यहाँ से मिला, एंड लेट्स सी हम कौन से लेवल पर हैं। हम मैक्स वाले लेवल पर हैं, एंड वी हैव टू गो ओवर हेयर टू द मिन लेवल, ठीक है। सो यहाँ पर लेवल 2 पे x बन तो गया डायगोनल में। oh yeah, बन तो रहा है, that's not a problem, we're talking about कि मिनीमैक्स वर्क किस तरह से कर रहे होते हैं। तो you go depth first जाते हैं यहाँ से, like basically you're looking at the score and you'll be looking at के हर लेवल पर डिपेंड करता है कि क्या स्कोर है, उसकी बेसिस पर यू हैव टू से कि मिनिमम स्कोर कौन सा था उसके नीचे वाले लेवल पे, या मैक्सिमम स्कोर कौन सा था उसके नीचे वाले लेवल पे। तो इफ़ वी गो ओवर हेयर, यहाँ से मुझे -10 मिल रहा है, राइट? -10। सो करेंटली उसने सिर्फ ये रीड किया था, -10 उसे मिला। आई हैव मेड नोट कि इसके एक चाइल्ड का स्कोर -10 था। कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि देखें लेवल 1 पे उसके सेंटर में एक सर्कल है एंड लेवल 2 पे एक्स आ गया सेकंड वाले। ओह देयर माइट बी अ मिस्टेक हियर, सही, हम फिक्स कर लेते हैं, मसला नहीं है। मिस लेवल 2 पे जब हम -10 असाइन कर सकते, हाँ सही है ना, अब नहीं बन रहा। Okay, I think that should be fine. So yeah, there was an error. Good catch. Yeah, but still, दोनों में नहीं बन रहा होगा. It's fine. कोई मसला तो नहीं है, guys? Like, वो there was a picture में मसला था, वो हमने सही कर लिया है. लेकिन I don't think that's gonna impact anything. Still वो X या O कोई भी नहीं बन रहा होगा. मिस हमारा जो गोल होता है वो एक एजेंट को विन करवाना होता है जो हम एजेंट बनवा रहे हैं। Yes. तो इसमें लाइक हम दोनों की कंडीशंस को देख रहे हैं, एक को मिनिमाइज Okay, कर रहे हैं। yeah. So the thing is कि मुझे बेस्ट मूव पिक करना है बेस्ड ऑन के मुझसे अगले वाला बंदा क्या पिक करेगा, काइंड ऑफ। So like I can place an X over here, या I can place an X over here या over here। तो इस सिचुएशन में तो लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर मैंने एक्स यहाँ पर लगा दिया तो नेक्स्ट बंदे की बारी आएगी ही नहीं, राइट? बट लेट्स इग्नोर दिस पार्ट फॉर नाउ, सही है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पार्ट फॉर नाउ। तो आई एम गोना अनडू अ लॉट ऑफ स्टफ ताकि हम दोबारा से इसको देख लें। तो दिस वाज रॉन्ग, तो इसको हम 0 कर देते हैं, एंड दिस वाज रॉन्ग, तो इसको हम 0 कर देते हैं। ओके ग्रेट। सो लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट यू डू इज कि डेप्थ फर्स्ट सर्च लग रही होती है। सो ओवर हेयर हम इधर जाएंगे उसके फर्स्ट चाइल्ड के पास, देन सेकंड चाइल्ड के पास, ठीक है। ना कीप इन माइंड ये हमारी लीफ नोड है, लीफ नोड है, इसके पे -10 हमारे पास स्कोर गिवन है। नाउ हमेशा हर नोड के पर यू हैव अ स्कोर, वह आपको उसके पेरेंट नोड्स के पास स्कोर नहीं होता। पेरेंट नोड के पास कहाँ से हमारा स्कोर आएगा? दैट इज़ बेसिकली यू हैव टू लुक एट योर चाइल्ड नोड्स कि लाइक चाइल्ड नोड्स उसकी कौन कौन सी हैं, एंड उनके स्कोर्स में से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सो अगर मुझे लाइक ना दैट डिपेंड्स ऑन कि मैं किस लेवल पर वो स्कोर पिक कर रही हूँ। तो अगर मुझे लेवल 2 मिनिमम वाले के लिए कोई स्कोर पिक करना है, तो इफ़ आई हैव द ऑप्शन तो आई विल पिक द स्टेट विद द मिनिमम स्कोर। तो इस सिनेरियो में इसका ऑलरेडी स्कोर -10 था, राइट? सो लीफ नोड्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए देखना है। इसकी बात करते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ से वापस जा रहा है इसके पास, यहाँ से वो आएगा यहाँ पर,
ठीक है ना, इसका ऑलरेडी स्कोर नहीं है तो इट विल लुक एट इट्स चाइल्ड कि उसका स्कोर क्या है. सो उसका स्कोर वाज 0, राइट. सो देयर वाज नो अदर चाइल्ड टू पिक फ्रॉम. तो व्हाट इट विल डू इज कि वो इस स्टेट का स्कोर अपडेट करके 0 कर देगा. ठीक है. सो इस स्टेट का स्कोर 0 है और इस स्टेट का स्कोर -10 है. तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि नाउ यू कैन अपडेट द स्कोर फॉर दिस स्टेट. तो वो क्या करेगा, 0 एंड 10 में से -10 में से आई हैव टू पिक समथिंग. एंड सिंस ये लेयर मैक्सिमाइज कर रही है तो आई हैव टू पिक द मैक्सिमम बिटवीन 0 एंड 10. तो आई पिक 0 बिकॉज -10 इज स्मॉलर देन 0, राइट. तो अब इस स्टेट का स्कोर इज नाउ 0. मैंने बड़ा बुरा सारा 0 बनाया. ठीक है, इस स्टेट का स्कोर इज नाउ 0. सो अभी लेकिन हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च कंप्लीट नहीं हुई ना, तो वी हैव गॉन बैक ओवर हेयर टू अपडेट द स्कोर एंड फिर हम यहाँ से नेक्स्ट के पास जाएंगे. सो विल गो ओवर हेयर. मुझे इसका स्कोर अपडेट करना है, बट टू अपडेट द स्कोर आई नीड टू सी कि इसके चिल्ड्रन का स्कोर क्या है. आई विल गो ओवर हेयर. इसका भी स्कोर नहीं है तो आई हैव टू गो टू इट्स चाइल्ड. सो इसके इसमें भी 0 आएगा बीच में. no, it would be 10. वैसे इसमें सेम मिस्टेक है, 0 आएगा फिर बीच में. 0 बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट. ओह यहाँ पर, ओह यहाँ पर, यस there we go. और कहीं पे तो नहीं है मसला. Let me just यहाँ पर. नो मिस. Okay, okay. So when you come over here, इसके child का score check किया. So इसके child का score क्या है? 10. So you will update the score for this one to 10. ठीक है. And now you know the score for this one. You'll go back here. इसके दूसरे child का score नहीं पता तो you cannot select a score for this yet. So you'll go to the child. You'll go to the child's child. And वहाँ से then you have to pick the best, the worst score that you can find. But since एक ही है तो you'll pick 0 and इसका score हम update करके 0 कर देंगे. So next time I have to pick whatever is best between 10 and 0 because like just भी layer पे लिए हमें pick करना है, हम उसके accordingly pick कर रहे हैं. तो for this one I have to pick max. तो 0 and 10 के अंदर से max मुझे 10 मिलेगा. ठीक है. And similarly you go back, you go to the next one and यहाँ से आपको again since एक ही leaf node है तो आपको directly 10 मिल जाएगा for this. तो well actually यहाँ से 10 की ज़रूरत नहीं है. So you already have 10 over here. इसको further जाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है because that is directly the leaf node. तो अब once you've done all of that, तो now you have two states जहाँ पर winning is possible, right? Because एक 10 और दूसरा 10 we have, and if you go over here किसी वजह से तो winning is not possible, but draw कर सकते हैं. तो wait actually yeah ठीक है. So draw कर सकते हैं and now आपका एजेंट जो है इन दोनों टेंस में से किसी एक मूव को पिक कर सकता है. दैट इज द होल थिंग. दैट इज व्हाई वी डिड ऑल ऑफ दैट. तो विल सी अनदर एग्जांपल जिसके अंदर हम ये कर रहे होंगे, बट फॉर नाउ जस्ट कीप दिस इन माइंड कि लीफ नोड्स एग्जिस्ट कर रही होंगी. यू गो डेप्थ फर्स्ट आते हैं एंड पेरेंट्स के स्कोर अपडेट करने होते हैं बेस्ड ऑन कि वो कौन से लेवल पर है, वो मिनिमम वाले लेवल पर हैं या मैक्सिमम वाले लेवल पर है. तो एक लेवल हमेशा मैक्सिमाइज करने की स्कोर कर रहा होगा एंड दूसरा लेवल हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होगा. मिस अगर लीफ नोड्स मल्टीपल हो एक स्टेट के लिए तो हम वर्स्ट स्कोर चूज करेंगे या बेस्ट स्कोर चूज करेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल, राइट. सो लाइक फॉर एग्जांपल इस वाली की बात करते हैं हम. तो एक्चुअली हैंग ऑन, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं. सो लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तो हमारे पास लीफ तो नहीं है बट 2 चाइल्ड नोड्स हैं, राइट. तो इट वर्क्स एसेंशियली द सेम वे एज 2 लीफ नोड्स वुड कि जो भी बेटर स्कोर है वो पिक करना है. आई विल शो यू अनदर एग्जांपल. उसके लिए मैंने एक
पिक्चर संभाल के रखी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो विल हैव अ लुक एट इट. ऑल्सो समबडी रेज देयर हैंड, यू कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन. मैम अगर हम लेवल 2 पे भी कर रहे होते तो हम लेवल 3 से मिनिमम नोड को लेते. यस यस. और मैम अगर एक स्टेट से हम दो दो मतलब मूव्स में जीत रहे हैं, मतलब दो चाइल्ड्स में हम जीत रहे हैं और एक में हम सिर्फ एक में जीत रहे हैं, तो हम फिर वो कैसे पिक करेंगे कि हम जिसमें चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के? Okay, so the thing is, this particular example doesn't exactly pick the best move in terms of कि कितनी turns में जीत रहे हैं. It will pick the best move जिससे हम जीतने के chances maximum हैं, but number of turns को ये consider नहीं कर रहा अभी. अगर नंबर ऑफ टर्न्स को कंसिडर करना होगा तो हमें स्कोर को और लेवल की बेसिस पर मॉडिफाई करना होगा कि लेट्स से अगर लेवल 1 पर जीत रहा है तो +10 और कर दो, सो लेट्स से +20 कर दो. अगर लेवल 3 पर जीत रहा है तो +5 कर दो. तो लाइक you're kind of giving it a better score based on कि किससे जीत रहा है. So अगर मैं यहाँ पर let's say +10 और कर दूँ, so like 20, एंड यहाँ पर मैंने +5 अगर किया होता तो now this would give me 15. it मेरे पास फिर 15 and 20 स्कोर आ रहा होता, तो it would pick the better out of the two because उसे मैक्सिमाइज करना है, राइट. और मिस आपने लेवल 2 को मेन एज एन एग्जांपल रखा है या मतलब Oh no. So हमेशा alternating होता है. So first level you're trying to maximize the score and second level you're trying to minimize the score. So it's like आप ये सोच रहे हो जिस तरह से हमारी thinking होती है ना कि okay अगर मैं ये move करूँगा तो मेरा opponent ये move करेगा. तो level 2 is basically हम वही चीज़ replicate करने की कोशिश कर रहे हैं कि okay if I do this move my opponent will do this move then I can do that move. So like basically मेरा move opponent का move then again मेरा move एंड देन अगर लेवल 4 होता तो वो ओपोनेंट के लिए होता. सही है मिस. मैम बट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था यू हैव सेड कि एक एजेंट एक स्मार्ट एंटिटी के अगेंस्ट प्ले कर रहा है. ये तो फॉर एग्जांपल अगर एक एजेंट है और उसके वर्सेस में एक इंसान है तो हम कंट्रोल सिर्फ एजेंट को कर सकते हैं. तो क्या एजेंट ही मतलब जब एजेंट की पहली दफा बारी आएगी तो मैक्सिमाइज करेगा, फिर उसकी दूसरी दफा बिल्कुल. No, agent is more like thinking के okay if I make this move तो let's say human opponent क्या move कर सकते हैं, basically it's thinking that. तो the whole thing is कि पूरा ट्री बेसिकली इसलिए है कि उन सारे मूव्स में से बेस्ट मूव कौन सा होगा टू स्टार्ट आउट विद, दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन बेसिकली. और एक और चीज जैसे एग्जांपल आपने यहाँ पे x को +10 दिया हुआ है और एक लेवल 2 पे o भी जीत रहा है, सही है, लेकिन आप उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे हम. तो इस तरह तो हमारे एल्गोरिदम में सिर्फ एक को ही हम विन कराएंगे हर दफा, दूसरा विन हो भी रहा है तो हम उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे. ओ तो सिर्फ फर्स्ट वाले में जीत रहा है ना, राइट? जी वो जीत रहा है लेकिन ऑब्वियसली हमने मैक्स चूज करना है तो सो हम जिसको जीतवाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैक्स बिहेव कर रहा होगा. सो इन दिस केस ओ को हम एज अपोनेंट ट्रीट कर रहे हैं. The opponent is trying to win against you, obviously, but ये opponent की AI नहीं है. It's the AI for the actual agent, basically. But the agent itself is trying to think कि मेरा opponent किस तरह से behave करेगा. That's why वो बाकी moves को consider कर रहा है कि okay, if I do this, what will my opponent do? Okay, ma'am. Okay, so I have another thing over here. एक binary tree बनाया है यहाँ पर. ज़रा मैं इसकी copy कर लो image, and then we can talk about कि उसके ऊपर अगर मुझे adversarial search लगानी है तो वो किस तरह से हो रही होगी. I need to make this a little big. So कुछ scores हम रख लेते हैं for each level. Let me just make a text box. Okay. So नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स हैं, राइट.
let's give it some score. Let's say 7, 3, and um -3, -7, 5, -1, and मैं random scores दे रही हूँ, so it can be anything. Let's say -2, -5. नहीं, actually इसको plus कर लेते हैं 5. Okay, so have some scores here. मैं इसको नीचे move कर देती हूँ ताकि हम align कर लें इसके साथ. Okay. Okay, so ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, and ये इसका हो गया. ठीक है. I don't know मैंने कॉमा क्यों डाला था. Okay, so I've assigned scores to all of these nodes. So again हम levels define कर लेते हैं कि कौन सा minimize कर रहा है, कौन सा maximize कर रहा है. So हमेशा first level maximize कर रहा होगा and second level minimize कर रहा होगा and so on. अगर और levels होते तो फिर और भी चीज़ें होती, but right now हमारे पास 2 ही levels हैं, तो one for maximizing, one for minimizing. Alright, so minimize वाले का काम क्या है? To pick the lowest score that it can find, right? तो again, DFS की अगर हम बात करते हैं तो we'll be going from 1 to 2, 2 to 4, then 4 to 8. ठीक है. Over here we know कि हमारा score क्या है 7, and we'll go back and go to 9. यहाँ से मुझे score 3 मिल रहा है, right? So between 7 and 3 I have to minimize. तो यहाँ से minimum क्या pick होगा? 3. So yeah, so for node 4 it will pick 3. ठीक है. So leaf से हमने 3 pick कर लिया. Then it'll go over here. अभी 2 के लिए मुझे just 3 का पता है, but I don't know कि 5 का score क्या है. So from 5 now it'll go to 10. It'll check कि उसका score क्या था, 3 था, and then it'll go to 11. उसका score क्या था, 7 था. So again I have to minimize, right? So from -3 and -7 it'll pick -7 because that is the minimum score, right? So now I have this side done. So 2 को भी हमने score नहीं दिया. So 3 and -7 मुझे मिल रहा है. And -7 से हम वापस जाते हैं ज़रा 2 के पास. So 2 has to pick between 3 and -7. So 3 and -7, since हम maximize करने की कोशिश कर रहे हैं, तो you'll pick 3 over here. ठीक है. So यहाँ से हमने score 3 pick कर लिया. So now you go over here, you go to the other side, then again same काम हम repeat करेंगे, right? So from 5 and -1 again I have to minimize. The 5 and -1 से 5 and -1 से you pick -1, and then you go back like 6 से होते हुए 3 पर जाएंगे, and 3 से होते हुए then you go to 7, right? So 7 पर जाएंगे, 7 से then I have to go to 14. 14 से you have to get the score, -2 था. You go to 7 again, 7 से 15 पे, 15 से back to 7. So now again minimizing between 5 and -2. तो -2 हम pick कर रहे होंगे यहाँ से. Then I have to maximize between -1 and -2. तो मुझे क्या मिलेगा? -1. सही है. So now मेरे पास 2 and 3 जो nodes हैं, they each have a score of 3 and -1. तो मेरा एजेंट जब डिसाइड कर रहा होगा कि कौन सा मूव मुझे पिक करना है, तो it will be picking between 3 and -1 and it'll pick the better one basically. So it'll pick 3 क्योंकि उसे best move pick करना है to win. Now different scores के साथ अगर मैं करूँ तो different result भी आ सकता है.
but that is kind of the logic behind this. Now see, remember हम उसके अंदर +10 -10 कर रहे थे, but over here हमने random scores दे दिए थे. तो random scores जो हैं, अगर मुझे score maximize करना है, तो you can maximize like by assigning some specific values to it instead of just +1 या -1. Okay, so questions. Oh, 0th level के ऊपर हम I guess you could do something like this कि आप zeroth को max consider कर लें. Actually ये min हो जाएगा since हमने इसको max किया हुआ था. So अगर मैं min की बात कर रही हूँ तो it will only pick -1. लेकिन we start with max actually. So actually do we redo this? इसको redo कर लेते हैं, don't worry. So with max, min, then max and then min. I'll do it on the side, same picture के साथ. Oh, I didn't mean to save it. Okay, same picture, same scores. And okay, and हम levels को नाम different दे रहे हैं, right? So let me just select this and move it a little. There we go. And हम first level को max कर लेते हैं. Sorry, 0th level को max कर लेते हैं. First level को min. Then this one max. ठीक है. And leaf nodes को हम कुछ भी नहीं assign कर रहे. तो अगर max के ऊपर मुझे ये करना है तो again same काम हो रहा होगा. So I'll just write the numbers down directly this time. हम arrows नहीं draw करेंगे. So if I have the layers like this, okay, first is maximizing, second is minimizing, and then third is maximizing. So from 7 and 3 अगर maximize कर रही हूँ तो I'll pick 7. अगर from -3 and -7 I'm maximizing तो I'll pick -3. And similarly 5 and -1 say if I'm maximizing I'll pick 5. And from over here again I'll pick 5. ठीक है. And then minimizer को जब भी pick करना है तो what will it pick? It will pick -3. ठीक है. And minimizer will pick 5 over here because दोनों same scores थे. And maximizer will pick 5. ठीक है. So even though मुझे यहाँ से best score मिल रहा था, but you know for a fact कि minimizer मुझे या जो भी intelligent agent होगा on the opposite side, you can know for sure कि वो आपको वो best possible score लेने नहीं देगा. So that's why you go with the path जो कि आपको guarantee करता है कि that you get at least a positive score instead of a path that will lead you to get -3. Okay, any questions? नहीं, path नहीं. Yes, we have to pick the next state based on जो भी मुझे current state है ना मेरी. So you do the whole thing to figure out कि next state क्या होगी. And once you know कि next state enemy ने क्या pick करी है, तो अब उसकी basis पर you do the whole process again कि अब next possible states क्या हो सकती हैं. Yes, definitely. So in the next class we'll be talking about an algorithm जो कि इसका modified version है to make it less basically time consuming. Good catch वैसे. Okay, questions guys? Alright, I hope it's clear to you guys.
Yes, because like when you think about like tic-tac-toe, उसके लिए तो इतना मसला नहीं है, right? Because you have like 9 states. लेकिन जब हम chess की बात करते हैं, तो now that is a whole lot of states, and it's not possible. Well, it is possible, but like it will take a lot of memory to make all of the states, right? So there are some ways to go about it कि किसी specific depth तक tree generate किया जाए ताकि you don't have to like generate all the possible nodes. So alpha beta pruning is something जो कि हम कर रहे होंगे next class में. That is the fix for the issue that we have here कि like इतना बड़ा सारा हमारा tree बन रहा है. Okay, do we have any questions that we want answered? Oh yes, actually I do have a little announcement for you guys. Um, and that is, I think you can see in my screen कि यहाँ पर track attendance का एक button है. Now that is an extension that I have जो कि university ने kind of share की थी हमारे साथ. So uh, that extension just lets me grab everyone who is in the call. So I'm just showing you how it works, okay? Okay, so हमारी मीटिंग की अटेंडेंस उसने जनरेट कर दिया and you can view whoever was in the meeting. Give me a sec. Wait, what? Wait, what? It shouldn't do that. That's weird. मैं दोबारा से जनरेट करके देख लेती हूँ. Because like last time, last class की उसने जनरेट कर दी. Okay, that's weird. It was working fine in the other one. Okay, but that is something that I will be using. I don't know why it didn't work right now. Miss, it says meeting duration 0 minutes है तो वो समझ आए कि मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई अभी तक. Oh, that's weird. Okay, maybe I'll let it run a little bit. Okay, let's see. Hopefully that works. Oh yeah, there we go, that worked. Yep. Right, so we'll be using that, so make sure you join using your email IDs NU वाली जो होती हैं आपकी ताकि वो आपके रोल नंबर स्क्रैप कर ले वहाँ से. Oh, but I'm not sure because like इनका roll number नहीं show रहा, so maybe it's just showing whatever username you have decided to keep. चलें जो भी है, लेकिन majority का तो होगा, तो that should be fine. So अगर हमारी online classes होती रहती हैं even after Eid, तो we'll be using this. But for Ramzan हम नहीं लेंगे, but I'm just letting you know beforehand. Oh yes. Also, I missed your question kind of. I just saw alpha beta pruning and मैंने बाकी नहीं देखा. But deep blue के लिए it was one of the algorithms जो कि use किए गए थे to win against the chess player. But I think time is up for the class, right? So we will see. मैम Yes. फॉर एग्जांपल ये जो मिनिमैक्स है ये स्टार्ट होने से पहले सारी पॉसिबल स्टेट्स जनरेट कर लेगा Yes. और फिर वो लाइक खेलना शुरू होगा तो ऑब्वियसली उसकी मेमोरी में रिजल्ट्स होंगे कि उसे पता होगा क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर. बिल्कुल.
So it'll have all the states अगर छोटी game है तो so like for tic-tac-toe it can easily generate all the states लेकिन अगर chess की बात करते हैं तो it's gonna have a lot of trouble generating all the states because वो बहुत बड़ा tree बन जाता है सही बात है फिर तो बहुत and टाइम then करने के लिए and then it लगेगी would be time consuming to like traverse the tree, find the best solution and like use that solution, right? तो उसको fix करने के लिए we use alpha beta pruning to make it faster. तो इनिशियली जब आप पूरी सारी स्टेट्स जनरेट करके बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड कर रही हैं तो उस वक्त लाइक यू आर डूइंग बोथ मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग स्टफ Yes, yes. So जब भी मुझे move decide करना I'm doing that. ओके फाइन Mhm. Is it after Eid? Next week Eid तो नहीं है ना? ट्यूसडे तो ईद नहीं है ट्यूसडे वेंसडे नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली फ्राइडे सैटरडे ईद है Yeah, तो Monday Tuesday तो होंगी ना classes. वे नहीं आपकी तो Monday नेक्स्ट को नहीं ट्यूसडे होती. को आई गेस ऑफ होगा ना उसका लाइक 27th नाइट का ऑफ देते हैं ना Fast देती है off? मे बी I don't think fast वाले off देते. But if it is off then that's fine. लेकिन अगर नहीं होता तो फिर we will have the आप ऑफ classes. दे रहे हैं नहीं ना, I can't do that. Okay. Oh my god. Okay, चलें फिर इंशाल्लाह next class में if um, it is on तो फिर हम alpha beta pruning कर रहे होंगे hopefully with examples. I will be uploading these slides. इसके अंदर actually एक और example थी जो कि हम discuss नहीं कर पाए. Which was this one? इसके अंदर भी like you have to like make a decision based on some scores. तो इसके अंदर भी scores random है. Well, not random. So it's like -10, 0, -5, and -3. So in this case, you're trying to minimize your sentence basically. So now this is between two players, and इसके अंदर scores are like in a pair instead of different nodes. तो इसको भी हम next class में एक दफ़ा discuss कर लेंगे. चलें, so class off करते हैं because I do have a class soon-ish. चलें, अल्लाह हाफ़िज़ everyone. अल्लाह हाफ़िज़ Stop recording.